welcome to the lecture. In today's lecture, we are going to talk about a very important concept in derivatives and financial risk management, and that is option valuation or the option pricing models. So, in this lecture, we are going to cover several points regarding options. Why do we need to evaluate options? What are the different models which are being adopted by the academicians and the professionals to value options? So, in order to get an idea about how to evaluate an option, you first need to have an idea of what an option is. So, basically, we can define option as the name suggests. It is a right which is given to you. It is not an obligation. It is a right which is given to you, which allows you to buy a certain underlying asset on a specified date at a specified price, which we refer to as an exercise price. Now, let me explain this in a little bit more detail. Basically, options जो होते हैं हमारे पास, ऑप्शंस आपको एक राइट देते हैं कि आप उनको एक स्पेसिफाइड डेट पे एक स्पेसिफाइड प्राइस लेवल पे उनको एक्सरसाइज करके, अगर तो आपकी अगर तो जो मार्केट प्राइस है किसी भी शेयर की जो आपने जिस पे आपने ऑप्शंस परचेज किया हुआ है, अगर तो उसकी मार्केट प्राइस हाई हो जाती है, तो आप उसको एक लो स्ट्राइक प्राइस पे या एक्सरसाइज प्राइस पे परचेज करके उसको मार्केट पे हाई प्राइस पे सेल करके आप जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो बेसिकली एक ऑप्शन का कॉन्सेप्ट है। तो ये इसके लिए आपको स्टार्ट में एक प्रीमियम देना पड़ता है। बेसिकली उसी प्रीमियम की वैल्यू को हम आज डिराइव करने की कोशिश करेंगे, एवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली एक ऑप्शन की जो प्रीमियम वैल्यू हमें पे करनी पड़ती है राइट एट द बिगिनिंग ऑफ परचेजिंग द ऑप्शन। सो हाउ कैन वी कम टू नो वेदर the option is fairly priced or whether it is underpriced or whether it is overpriced. So in order to know whether about the valuation of an option, we use several models. So basically option जो हमारे पास होता है, option premium जो होता है हमारे पास, it is considered as the value of an option कि आप option को buy करने के लिए आप कितनी value देनी, how much you are willing to pay for in order to purchase that option. So option को वैल्यूएट करने इसलिए ज़रूरी है कि इन ऑर्डर टू नो कि अगर ऑप्शन की आप जब ऑप्शन को वैल्यूएट करते हो तो आप उसकी फेयर वैल्यू को जज करते हो। तो फिर जब आप उसकी फेयर वैल्यू को जज करते हो तो आप उसकी मार्केट प्राइस के साथ उसको कंपेयर करते हो। तो देन यू कम टू नो कि वेदर द ऑप्शन इज ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड और व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द करंट ऑप्शन प्राइस। अगर तो ऑप्शन की प्राइस जो है वो अंडर प्राइस है तो डेफिनेटली आप ऑप्शन को बाई कर लेंगे, और अगर ऑप्शन की प्राइस ऑप्शन की जो प्रीमियम है, जो वैल्यू है वो ओवर प्राइस है, तो आप ऑप्शन को सेल कर लेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली कुछ मॉडल्स हैं जिनको हम यूज़ करके ऑप्शन की फेयर वैल्यू को डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये जो मॉडल्स हैं, बेसिक मॉडल्स हैं, वो 3 हैं हमारे पास। एक पोर्टफोलियो रेप्लिकेशन मॉडल है, एक रिस्क न्यूट्रल मॉडल है, एंड द थर्ड वन इज बाइनोमियल मॉडल। बाइनोमियल मॉडल में फिर आगे मल्टी टाइम पीरियड मॉडल भी है, और जो फोर्थ वन है दैट इज ब्लैक एंड शोज मॉडल। दिस इज एक्चुअली द लेटेस्ट वर्जन और द is mostly used by the market specialist to value options. So the main focus of this video is going to be on binomial models, but in order to get a detailed idea of basically the intuition behind the binomial models, you need to have an idea about risk neutral models. Basically, what what is the intuition behind risk neutral model? How we value an option based upon these models. So in this video, you are going to get an idea of how these models work, and basically what is the whole you can say intuition behind building these models, and how these models work. So there are a couple of things which you need to keep in mind before studying these models. That is, number one, we cannot determine the value of put options directly through these models. First of all, we will have to determine the value of all options for the same exercise price. Once we have determined the value of all options,
then we can determine the value of put option for the same exercise price by using the put call parity theory. Now I'm not going to get into the details of what is the put and call theory. Let's leave it for another lecture. So I'm going to move on to the basics of the models that we're going to study. So I'm going to start off with giving an example. Then once you are familiar with the concept, then we're going to generalize this the example into we're going to generalize this in equations. So first of all, I want you to consider the data given on the screen. Let's consider that we want to buy an option or a share of a stock. Let's say the current market price of the share today is 400 rupees, and the 1 year call option that is available at an exercise price of 440. So what does this mean is that the current market price of share is 400, and we have a 1 year option in the market available, which will allow us to purchase the same share after 1 year with an exercise price of 440, which means that we can, after 1 year, we can purchase the same share for 440 rupees, which is currently trading at 400. So the other information which is given to us is the risk-free rate of interest. The risk-free rate of interest is 10% per annum, and the probable market prices at the end of the year. So now it is very important to consider the information given. So now what the information given to us says that the current market price of the share today is 400, and the probability that the current market price can either go to 360 or can increase to 480. So there are two probabilities here. One probability is either the market price can increase from 400 to 480, or the other probability is the market price can decrease from 400 to 360 after 1 year. And the other information says that we can purchase a call option which has an exercise price of 440 on it. So now I want you to basically go through these couple of steps just in order to get a better understanding of the whole models that we're going to study. So first of all, you need to know what is the spread. We need to determine the spread between the two probable market prices, which are the probable market prices at the end of the 1 year. So as we have seen earlier in the information given above, that the probability that there is one probability that price will increase from 400 to 480. So, and the other probability is that the price can decrease from 400 to 360. So what is the difference, or what is the spread between those two probable market prices at the end of the 1 year? So we're going to subtract the higher probable price from the lower probable price. So ये जब हम दो prices को subtract करेंगे, 480 में से 360 जब हम subtract करते हैं तो हमारे पास 120 रुपीज आ जाता है. अब ये 120 रुपीज बेसिकली हमारी मार्केट प्राइसेस के स्प्रेड को शो कर रहा है जो कि 1 ईयर बाद होंगी इसी स्टॉक की जिसकी करंट मार्केट प्राइस 400 है. नेक्स्ट जो है हम कंसीडर करेंगे स्प्रेड बिटवीन द प्रोबेबल ऑप्शन वैल्यूज एक्सपेक्टेड बाय द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि एक साल बाद जो ऑप्शन की वैल्यूज जो हैं हमारे पास, क्योंकि दो ही प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, या तो जो शेयर है उसकी मार्केट प्राइस हाई जा सकती है या तो शेयर की मार्केट प्राइस लो जा सकती है. अब अगर शेयर की मार्केट जो प्राइस है वो 1 ईयर बाद जब हाई चली जाएगी तो उस वक्त ऑप्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, और जब एक साल बाद जब शेयर की मार्केट वैल्यू डाउन जाएगी तो उस वक्त जो हमारा ऑप्शन है उसकी क्या वैल्यू होगी. अब हमने वो दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और उनके दरमियान जो हमारा डिफरेंस आता है दैट इज व्हाट वी कॉल द स्प्रेड between the two probable option values expected by the end of the period. So वो हमारे पास बेसिकली कैलकुलेट किस तरह होता है कि ऑप्शन की जो वैल्यू है वो ऑप्शन वैल्यूएबल किस टाइम होता है जब आप उसको एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है, ऑप्शन उसी वक्त वैल्यूएबल होता है जब आप उसको एक्सरसाइज करते हैं. जब आप उसको एक्सरसाइज ही नहीं करोगे तो उसने आपको क्या वैल्यू देनी है, वो तो फिर लैप्स हो जाता है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है. ऑप्शन एक्सरसाइज तब ऑप्शन जो है एक्सरसाइज हम कब करते हैं जब उसकी जो मार्केट प्राइस है स्टॉक की जिस पर हमने ऑप्शन परचेज किया हुआ है उसकी मार्केट प्राइस इंक्रीज कर जाती है उसकी एक्सरसाइज प्राइस से. अब जितनी उसकी मार्केट प्राइस उसकी एक्सरसाइज प्राइस से ज़्यादा होगी उतना ही हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम एक्सरसाइज प्राइस पे परचेज कर रहे हैं. लेट्स से इन दिस केस कि अगर तो ऑप्शन जो मार्केट प्राइस है शेयर की वो 480 पे चली जाती है
और हम जो है उसको एक्सरसाइज प्राइस 440 पे बाय कर सकते हैं, तो हम उसको जो है ऑप्शन यूज़ करके ऑप्शन एक्सरसाइज करके 440 का बाय करेंगे और हम उसको जाके मार्केट में 480 का बेच देंगे। तो जितनी मार्केट प्राइस ज़्यादा होगी उतना हमारा ऑप्शन ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। तो इन दिस केस जो ऑप्शन की वैल्यू हमारे पास आएगी जब मार्केट प्राइस व्हेन द मार्केट प्राइस विल इंक्रीज, सो द ऑप्शन वुड गिव अस द वैल्यू ऑफ 40 रुपीज़ कि अगर 480 पे चली गई मार्केट वैल्यू, हमने उसको 440 पे परचेज कर लिया ऑप्शन यूज़ करते हुए, तो हमारे पास जो ऑप्शन की वैल्यू आ गई वो 40 रुपीज़ आ गई। और जो इन द अदर केस अगर ऑप्शन की जो वैल्यू है, सॉरी जो मार्केट वैल्यू है शेयर की, वो डिक्रीज कर जाती है, 360 पे चली जाती है, फिर देन वी विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, क्योंकि हम अगर हमें 360 का मार्केट से शेयर मिल रहा है तो वही शेयर हम 440 का जो है वो क्यों खरीदेंगे। तो हम उस केस में ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे और ऑप्शन हमारा लैप्स हो जाएगा। हमने बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स इधर पढ़े कि डिफरेंस स्प्रेड का मार्केट प्राइस में और जो स्प्रेड था हमारा ऑप्शन की वैल्यू में। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज द रिस्क न्यूट्रल मॉडल। So this is a very very important concept and it basically forms the basis behind the equation of the binomial model, and if you can understand the basic concept behind this model, then you will be able to easily understand the binomial models too. So what does this model actually says? This model says, as for risk neutral model, risk-free rate of interest is a weighted average rate of returns at higher and lower probable prices, where the weights used represent the probability of rise and fall in prices. Now you need to understand this very theory behind this model. What does risk neutral model says? Risk neutral model basically क्या कहता है? Risk neutral model tells us कि जो हमारे पास risk free rate of interest होता है, जो कि हमारे केस में 10% है, वो किसकी इक्वल है? वो इक्वल है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज किसकी? रेट ऑफ रिटर्न्स एट हायर एंड लोअर प्रोबेबल प्राइस। यानी कि हमने जो क्वेश्चन में एग्जांपल ली, हमने कहा था कि करंट मार्केट प्राइस 400 है और दो प्रोबेबिलिटीज हैं। एक प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट प्राइस 480 पे चली जाएगी, दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट प्राइस 360 पे चली जाएगी। अब अगर मार्केट प्राइस 480 पे चली जाती है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास रिटर्न कितना आएगा, तो वो हम निकालेंगे, वो हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, अगर 400 से 480 पे चली जाती है तो ये बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा बनता है परसेंटेज में, ये 20% बनता है। सिमिलरली अगर प्राइस डिक्रीज कर जाती है 400 से 360 पे, तो इस केस में हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो बनता है वो हमारे पास -10% बनता है। अब बेसिकली ये मॉडल क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास जो रेट ऑफ रिटर्न्स आते हैं ना, आप उनका आप वेटेड एवरेज ले लो। अब वेटेड एवरेज हम किस तरह लेते हैं? हमें ये तो पता है कि प्राइस या ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। हमें पता है कि ऊपर गई तो 480 पे चली जाएगी और नीचे गई तो 360 पे चली जाएगी। अब हमें ये नहीं पता कि कितनी परसेंट चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी ये है कि प्राइस 480 पे चली जाएगी, या कितनी प्रोबेबिलिटी ये है कि प्राइस 360 पे चली जाएगी। अब वो जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ना, दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हैं प्राइस की हाई होने की या लो होने की। अब वो प्रोबेबिलिटीज़ बेसिकली उनको हम वेट्स कहते हैं। अब वो जब उन प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं या उन वेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबल प्राइस के साथ, जो है प्रोबेबल जो हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, अब जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न्स को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? उसकी प्रोबेबिलिटी की कितने चांसेस हैं कि जो प्राइस है वो हाई चली गई, कितने चांसेस हैं कि प्राइस लो चली गई। अब जब उनका हम वेटेड एवरेज लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा? वो हमारे पास रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इक्वल आएगा। ये बेसिकली इस मॉडल की जो इंट्यूशन है, जो एक कॉन्सेप्ट है, वो जो रिस्क न्यूट्रल मॉडल है उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। इसको एग्जांपल के थ्रू करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। इसको जब हम इक्वेशन में इसकी इक्वेशन में जब इसको हम इक्वेट करते हैं तो लिखते हैं, तो जैसे कि एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट मस्ट इक्वल टू the rate of return at lower probable price, which means the rate of return when the price decreases from 400 to 360, and we are going to multiply this rate with the probability of fall in price. What is the probability that the price will fall from 400 to 360? Then we are going to add in it the rate of return at higher probable price. So, what is the rate of return when the price increases from 400 to 480? We know that the rate of return in this case will be 20.
Now what are we going to do? We are going to multiply this rate of return with the probability of rise in price. What is the probability that the price will increase from 400 to 480? So now when we will add these two, we so basically this is the equation form of Joyce-Neutron model, which we studied above in the theoretical description. So now let us take an example. We are going to assume the similar data which we considered in the earlier example. So now, first of all, you need to understand how do we calculate the rate of returns. So basically, rate of returns means the change in terms of percentage of the amount which was invested initially by us, or the initial inflow, the amount of outflow as compared to the initial inflow. So in this case, we initially invested 400, and there are two probabilities: the rate of return at higher probable price. If the price increases, so what is going to be the rate of return if the price increases? So we say if the price increases from 400 to 480, so the rate of return in this case would be, we will subtract the final price, the latest price 480 from 400, and we are going to divide it by 400. So this will give us 0.2020%. So this shows that the rate of return when the price increases will be 20%, and similarly the rate of return at the lower probable price when the price decreases, the rate of return in that case will be negative 10%. तो बेसिकली यहाँ पे हमने ये बात की है कि जो रेट ऑफ रिटर्न कैसे हम फाइंड करते हैं, तो वो सिंपल सा मेथड है. तो हमने दोनों की रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर ली कि अगर प्राइस इंक्रीज करती है तो उस केस में हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, एंड प्राइस अगर डिक्रीज करती है तो उस केस में हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा. नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि अब ये जो हमने वैल्यूज फाइंड किया, अब रिमेंबर वन थिंग कि अभी हमें ये नहीं पता, हमें ये तो पता है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, कि अगर प्राइस हाई चलेगी तो फिर रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगा, अगर प्राइस लो चली गई तो फिर रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगा. लेकिन एक चीज़ जो हमें नहीं पता वो ये है कि कितनी परसेंट चांसेस है कि प्राइस जो है वो हाई जाएगी, या कितने परसेंट चांसेस हैं कि प्राइस जो है वो डिक्रीज करेगी. तो उनको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटीज़. अब हमने ये प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस जो है इंक्रीज करेगी, या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस डिक्रीज करेगी. यहाँ पे इस मॉडल की पूरी जो है कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा. ये हम कंसीडर करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ राइज इन प्राइस, हम कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइस उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो एक्स है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल इन प्राइस है तो ऑटोमेटिकली अगर वो एक्स है तो ये 1 माइनस एक्स होगी, क्योंकि 1 में से जब लेट्स से प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती. 1 रिप्रेजेंट्स द 100%, and the probability of anything cannot be over 100. So 1 represents 100. तो कोई भी जो सम होगा, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हम लेंगे उनका सम 1 की इक्वल होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता. तो इन दिस केस हम क्या कहते हैं कि अगर एक की प्रोबेबिलिटी, अगर राइजिंग प्राइस की प्रोबेबिलिटी एक्स है तो फॉलिंग प्राइस की क्या होगी कि 1 में से एक्स को माइनस कर देते तो बाकी जो रह जाएगी वो फॉलिंग प्राइस की प्रोबेबिलिटी होगी. तो अब हमने यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यूज पुट की. हमने कहा था कि रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट हमारे पास जो हमने एग्जांपल ली थी उसमें 10% था, तो 0.1 हमने लिख लिया, एंड इक्वल्स टू रेट ऑफ रिटर्न एट लोअर प्रोबेबल प्राइस. तो हमने वो फाइंड कर लिया था पहले, नेगेटिव 10%. तो माइनस 0.10 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल इन प्राइस. तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है फॉल इन प्राइस की वो 1 माइनस एक्स है, प्लस इसमें हम ऐड क्या करेंगे, बेसिकली हम वेटेड एवरेज ले रहे हैं कि हमने वेट रेट ऑफ रिटर्न जो लोअर प्रोबेबल प्राइस पे उसको वेट दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी को उसका वेट का नाम दे दिया, यानी कि वो 1 माइनस एक्स है. सिमिलरली जो रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास हायर प्रोबेबल प्राइस पे है वो हमने कहा था 20% है, 0.2 है. तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी परसेंट चांसेस है कि प्राइस राइज होगी, तो उसको हमने कह दिया एक्स है. तो जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो नेगेटिव 0.10 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 0.10 आएगा, एंड नेगेटिव 0.10 when multiplied with negative x, it equals to positive 0.1x. So what we're going to do is we're going to separate the two sides containing x and the other sides containing the simple numbers. So यहाँ पे क्या होगा कि नेगेटिव 0.10 जब इक्वेशन किस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 0.10 बन जाएगा, पॉजिटिव 0.10 में ऐड होकर 0.2 बन जाएगा, और राइट साइड ऑफ द इक्वेशन जो है उसमें 0.2 में हम 0.1x ऐड कर देंगे तो 0.3x बन जाएगा. तो हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली. तो x की वैल्यू हमारे पास जो है वो 0.2 डिवाइड बाई 0.3 थी. या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 2/3.
अब x हमने क्या कहा था कि x क्या चीज़ है, x इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइस। x क्या बेसिकली बता रही है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस राइज करेगी स्टॉक की। जो आज 400 है वो कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो 1 ईयर बाद उसकी प्राइस जो है वो 480 पे चलेगी। तो हमने इक्वेशन के थ्रू निकाला कि 2/3 यानी कि यू कैन से 67% प्रोबेबिलिटी है कि उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगी। अब सिमिलरली हमने कहा था कि जब लो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल इन प्राइस हम किस तरह निकालेंगे, x को जो है 1 में से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने x को 1 में से सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल इन प्राइस आ गई जो कि हमारे पास 1/3। ओके सो अब हमने बेसिकली यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया कि हमने बेसिकली पर्पस क्या हमारा रिस्क न्यूट्रल मॉडल को यूज़ करने का पर्पस हमारा ये है कि we have to find the value of the option, we have to find the current price of an option कि whether option जो है हमारे पास वो fairly priced है, under priced है, over priced है। अभी तो हमने बेसिकली क्या निकाला, हमने बेसिकली अभी जो है प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो करंट मार्केट प्राइस है शेयर की वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटीज भी आ गई, तो अब हमारे पास जो है वो हमारे पास प्रोबेबल प्राइस भी आ गया है। तो अब हम जो हैं इस डेटा का यूज़ करके जो जिस तरह हमने पहले कैलकुलेट किया, अब मैंने आपको स्टार्ट में कॉन्सेप्ट 2 बताए थे, स्प्रेड ऑफ प्रोबेबल मार्केट प्राइसेस का और स्प्रेड ऑफ ऑप्शन की वैल्यूज़ का। तो अब हम जो हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटीज आ गई ना मार्केट प्राइसेस की, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट प्राइस हाई हो जाएगी और क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट प्राइस लो हो जाएगी। अब जब मार्केट प्राइस हमारे पास हाई होगी तो हमने उस केस में ऑप्शन की वैल्यू भी निकाली थी, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस हमारे पास हाई होती है एट हाई प्रोबेबल प्राइस, हमने ये कहा था मार्केट वैल्यू कितनी होगी, सॉरी मार्केट प्राइस जब हाई होती है तो हमारे पास ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी, 40 होगी। अब हमें ये पता है कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि मार्केट की प्राइस हाई होगी, तो हमने कहा 2/3%, यानी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस हाई होगी। जब प्राइस हाई होगी तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन की वैल्यू भी हाई होगी। तो इसका मतलब है कि 2/3% यानी कि 2/3 प्रोबेबिलिटी है कि जो ऑप्शन की वैल्यू है वो 40 होगी बाय द एंड ऑफ 1 ईयर, और ऑप्शन की वैल्यू 0 होगी। इसकी कितने चांसेस हैं, ऑप्शन की वैल्यू 0 कब होगी, ऑटोमेटिकली 0 तभी होगी जिस वक्त उसकी जो प्राइस है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो उसकी प्राइस डिक्रीज होने के कितने चांसेस हैं, वो हैं 1/3। तो हम क्या करेंगे कि ऑप्शन की वैल्यू 0 आने की, तो अल्टीमेटली ऑप्शन की वैल्यू 0 आने के कितने चांसेस हैं, वो 1/3 हैं। तो हम इनका अगेन रिट्राइवरी ले लेंगे कि हमारे पास जो ऑप्शन की वैल्यू है रिस्पेक्टिव, जितनी भी हमारे पास ऑप्शन की वैल्यूज होती हैं उनको हम उनकी रिस्पेक्टिव जो प्रोबेबिलिटीज होती है उनसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस केस में हम जब 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 के साथ और इसमें ऐड करेंगे प्लस 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/3 के साथ, हमारे पास जो ऑप्शन की वैल्यू आएगी वो 26.67 आएगी। अब ये जो हमारे पास ऑप्शन की वैल्यू आई है ना, ये 1 ईयर फ्रॉम नाउ है, मतलब ये उस टाइम किया है जब हमारे पास जो ऑप्शन है वो एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन की मेच्योरिटी पे। अब हम चाहते हैं हमें करंट प्राइस चाहिए ऑप्शन की, करंटली ऑप्शन जो है उसकी करंट क्या प्राइस है कि करंटली वो ट्रेड हो रहा है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि वेदर इट इज़ फेयरली प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड और ओवर प्राइस्ड। तो हमें उसकी करंट प्राइस जो है पता करनी है। तो उसके लिए हम सिंपल इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। एज यू ऑल नो कि जब भी हमने किसी चीज़ की करंट वैल्यू निकालनी होती है तो उसको हम डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। इसको हम डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है हमारा 1.10, क्योंकि हमारे पास रिस्क भी इंटरेस्ट रेट 10% है, तो जब हमने इसको डिस्काउंट किया तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ गई हमारे पास 24.24 रुपीज़ आ गई। तो ये हमारे पास हमें बता रहा है कि जो हमारे पास जो ऑप्शन है उसकी प्रेजेंट जो वैल्यू है वो 24.24 रुपीज़ है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है बाइनोमियल मॉडल का। अब बाइनोमियल मॉडल का कॉन्सेप्ट सिंपल है बहुत। इफ अगर आपको रिस्क न्यूट्रल मॉडल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो बाइनोमियल मॉडल का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा। अब रिमेंबर आप वो ज़हन में you will have to remember all of that stuff that we have already studied. So now what the binomial model actually says. The equation of binomial model is stated as C is equal to Cu into 1 minus D divided by U minus D plus
CD into u minus I divided by u minus t, and we're going to divide the whole of this by capital I. Now I'll explain it to you. You will get a better idea of how this model was actually constructed. So what is C? C is basically the value of call option at present. What is the value of the call option now basically at this point at present? So basically this is the main purpose behind all of these models, to determine the value of the call option. And the CU represents the value of the call option 1 year from now. So basically CU जो हमारे पास है वो हमें कॉल ऑप्शन की वैल्यू बता रहा है. कॉल ऑप्शन की वैल्यू कब, जब प्राइस हाई हो जाएगी. यू रिप्रेजेंट्स अपर, यानी कि जब कॉल ऑप्शन, जब जो हमारे पास शेयर है उसकी प्राइस हाई होती है, तब उस केस में हमारे पास जो कॉल ऑप्शन उसकी क्या वैल्यू आएगी. और जो सी डी है वो हमें क्या बता रहा है कि अगर जो शेयर है उसकी प्राइस डाउन होती है, ऑटोमेटिकली जब शेयर की प्राइस डाउन होगी तब कॉल ऑप्शन की भी वैल्यू डाउन होगी. तो उस केस में जो है हमारे पास कॉल ऑप्शन की क्या वैल्यू है. और ये जो ऑप्शंस की वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास है फ्रॉम 1 year फ्रॉम नाउ, यानी कि मेच्योरिटी, जो ऑप्शन जब मेच्योर हो रहा है उस टाइम की वैल्यूज है. सिमिलरली जो कैपिटल आई है वो हमारे पास जो स्मॉल आई, जो हमारे पास रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कैपिटल आई आ जाता है. तो 1 + 0.10 = 1.10. और यू और डी हमारे पास ये दो न्यू टर्म्स हैं. तो बेसिकली ये वही टर्म्स हैं, सिंपल खाली हमने जो रेट ऑफ रिटर्न हमने लिया था उसमें हमने 1 ऐड कर देंगे. जब हमने रेट ऑफ रिटर्न जो हायर प्रोबेबल प्राइस का हमने लिया था वो हमने कहा था 20% है, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास यू आ जाएगा. इसी तरह हमने जो डी का लिया था हमने कहा था -10% है, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा. तो एक और भी यू और डी को कैलकुलेट करने का एक और सिंपल तरीका भी है कि यू जस्ट हैव टू डिवाइड द हायर प्रोबेबल प्राइस बाय इट्स बेस प्राइस एंड यू हैव टू डिवाइड द लोअर प्रोबेबल प्राइस बाय इट्स बेस प्राइस इन ऑर्डर टू गेट यू एंड डी रिस्पेक्टिवली. तो अगर हम उस तरह करेंगे तो हम, हमारे पास हायर प्रोबेबल प्राइस 480 थी, उसको हमने बेस प्राइस 400 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1.2 आ जाएगा, ये यू हमारे पास आ जाएगा. सिमिलरली हमारे पास जो डी है, लोअर प्रोबेबल प्राइस हमारे पास 360 थी, उसको हमने बेस प्राइस 400 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0.9 आ जाएगा, ये हमारे पास डी आ जाएगा. ओके अब हम हमने वही बेसिकली डेटा एज्यूम किया जो हम स्टार्ट से करते आ रहे हैं कि हमने कहा था कि सी यू, हमने कहा था कि कॉल ऑप्शन की वैल्यू कि जब उसकी प्राइस हाई हो जाएगी, तो हमने कहा था जब प्राइस हाई होगी, जब प्राइस 480 हो जाएगी तो उस केस में कॉल ऑप्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40. तो हमने सी यू की जगह 40 पुट कर दिया. और अगेन जो नेक्स्ट जो ब्रैकेट्स में चीज़ लिखी हैं तो वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है. आई हमने कहा था 1.1 है, डी हमने कहा था कि 0.9 है और यू हमारे पास 1.2 है. तो इन सबको जब हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास जो यहाँ पे सेकंड स्टेप में जो हमारे पास आ रहा है वो हमने जब सारी वैल्यूज को क्रिएट की तो हमारे पास जब आप देखेंगे तो C = 40 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 0.3. अब यहाँ पे आपने now you need to focus on this very point because it literally explains the whole concept behind the binomial model and how this model is actually a mathematical expression of the risk neutral model which we performed before. So basically risk neutral model में हमने क्या किया था कि हमने जो कॉल ऑप्शन की वैल्यूज थी उनको हमने क्या कर दिया था कि उनको मल्टीप्लाई कर दिया था उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के साथ. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू 40 थी हमने उसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमने उसको मल्टीप्लाई किया 0.2 डिवाइडेड बाय 0.3, मतलब इन अदर वर्ड्स 2/3 के साथ. तो अगर इफ यू रिमेंबर कि हमने जो रिस्क न्यूट्रल मॉडल था उसमें भी हमने ऐसे किया था कि हमने 40 को मल्टीप्लाई किया था किसके साथ, उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ. प्रोबेबिलिटी क्या थी 2/3 प्लस उसमें हमने ऐड क्या किया था 0 और इनटू उसको हमने 0 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया था कि 0 क्या हमारे पास कॉल ऑप्शन की वैल्यू जब प्राइस लो हो जाती है तो हमने 0 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया था, इनकी जब कॉल ऑप्शन की वैल्यू जब प्राइस लो हो जाती है या जब ऑप्शन लैप्स हो जाता है उसको हमने मल्टीप्लाई किया था उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ऑप्शन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी. तो वो हमारे पास आई थी 1/3. अगर आप सेकंड जो स्टेप में जो कैलकुलेशंस हुई इनको ब्रेक डाउन करो तो 1.2 - 1.1 जो है उसको अगर आप डिवाइड करोगे 1.2 - 0.9 तो ये 1/3 ही आता है. ये बेसिकली वो जो हमने रिस्क न्यूट्रल मॉडल पढ़ा था उसकी ही बेसिकली दिस इज एन mathematical expression which the mathematicians have actually designed on the basis of risk neutral model. कि आप जो है सिंपली इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दो तो आपके पास
कॉल ऑप्शन की वैल्यू आ जाती है। अब सिंपल हमने हमारे पास जो है 26.67 आ गया। अब आपको याद होगा कि हमने 26.67 जो हमारे पास आया था लास्ट मॉडल में हमारे पास यही वैल्यू है। अब हमने 26.67 को 1.10 से क्यों डिवाइड किया था? क्योंकि जो हमारे पास 26.67 था ये कॉल ऑप्शन की प्राइस थी, लेकिन ये प्राइस कब थी? 1 ईयर फ्रॉम नाउ। हमें कॉल ऑप्शन की प्राइस एट प्रेजेंट चाहिए, तो हम इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिवाइड कर देंगे 1.10 से। तो हमारे पास कॉल ऑप्शन की जो प्राइस है वो करंट प्राइस हमारे पास आ जाएगी, दैट इज 24.24। ओके, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल मॉडल का ही, दैट इज बाइनोमियल मॉडल जो है मल्टी पीरियड का भी हो सकता है। अब हम इस एग्जांपल के थ्रू कंसीडर करेंगे। इसमें तो इस केस में तो हमने एक टाइम पीरियड को कंसीडर किया ना, कि एक टाइम पीरियड हमारे पास के जो स्टॉक प्राइस हमने कहा था 400 है, कि 400 से हमने कहा था कि 400 से इंक्रीज करके 480 भी हो सकती है या डिक्रीज करके 360 भी हो सकती है। ये मतलब खाली हमने वी जस्ट कंसीडर वन टाइम पीरियड इन द होल एग्जांपल। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू एक्चुअली डू इज वी आर गोइंग टू कंसीडर मल्टीपल टाइम पीरियड्स। के अगर मल्टीपल टाइम पीरियड्स आ गए, लेट्स से हमारे पास कॉल ऑप्शन है वो 2 इयर्स के, तो अगर बेसिकली जो अगर करंट मार्केट प्राइस है वो अगर वन ईयर बाद इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है, लेकिन 1 ईयर बाद तो इंक्रीज डिक्रीज करेगी, लेकिन उसके बाद उसको एक और ईयर भी उसने ट्रेवल करना है, यानी कि 2 टाइम पीरियड्स के लिए हमने निकालना है, 3 के लिए निकालना है, 4 के लिए निकालना है। तो इतने मल्टीपल टाइम पीरियड्स को हम कंसिडर करके किस तरह से उनको इक्वेट करके और उनकी वैल्यूज हम निकाल के फिर हम करंट मार्केट प्राइस पे जाते हैं। तो बेसिकली ये जो एग्जांपल होगी आपको मल्टी पीरियड बाइनोमियल मॉडल की बेसिकली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। करंट मार्केट प्राइस HP लिमिटेड की है वो 4,800 रुपीज़ है, और ये करंट मार्केट प्राइस हमारे पास आ गई 4,800 रुपीज़। और एट द एंड ऑफ each quarter, now you need to focus on the information, on the details which are given. At the end of each quarter, there is a 40% probability that the price will increase by 60 and 60% probability that the price will decrease by 20. A 6-month call option is available on this share with exercise price of 4,830. Continuously compounding risk-free interest rate is 12% per annum. Determine the present value of this call option. Now, as the question basically states, there are 2 time periods in this call option. It says that the current जो market price हमारे पास वो शेयर की वो 4,800 है, और क्या कह रहा है कि हर क्वार्टर के बाद 40% प्रोबेबिलिटी ये है कि जो प्राइस है वो इंक्रीज करेगी 60 रुपीज़ से, और 60% प्रोबेबिलिटी ये है जो प्राइस है वो डिक्रीज करेगी 20 रुपीज़ से। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो टाइम पीरियड्स हैं, इनके 2 क्वार्टर्स हैं, और हमें इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि करंट मार्केट प्राइस इतनी है और 40% प्रोबेबिलिटी है कि करंट मार्केट प्राइस जो है वो 60 से इंक्रीज करेगी, और 60% प्रोबेबिलिटी है कि करंट मार्केट प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ से डिक्रीज करेगी। और जो कॉल ऑप्शन है उसकी हमें मेच्योरिटी बता दी गई है कि 6 मंथ्स है, तो 6 मंथ्स में जो है 2 क्वार्टर्स होते हैं, और ईच क्वार्टर कंसिस्ट ऑफ 3 मंथ्स। तो बेसिकली हमारे पास जो एक्सरसाइज प्राइस जो हमें दी हुई है वो 4,830। और जो एक और जो another very useful piece of information which is given to us in the question, it says that the compounding risk-free interest rate is 12% per annum. So this is a very important part of the information which states that the interest rate is compounding and it is 12%. So what we need to do is to determine the present value of the call option. तो बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट है ऑप्शंस की वैल्यूएशंस का, वो सेम ही रहेगा। बाइनोमियल में सिंगल जो फैक्टर था उसमें भी वही था जो हमने रिस्क न्यूट्रल में हमने ड्राइव किया था, और इसमें भी वही सेम ही रहेगा कि हमने बेसिकली करना क्या है कि जो कॉल ऑप्शन की वैल्यूज होती है ना, उनको हमने उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, उनकी वेटेड एवरेज लेती जानी है, और उन सबको डिस्काउंट करते जाना है उनकी प्रेजेंट वैल्यूज के साथ। तो अल्टीमेटली हम जितनी मर्जी टाइम पीरियड्स हम उन सब की जो जब वेटेड एवरेज लेते हैं उनकी वैल्यूज को, उनकी कॉल ऑप्शन की वैल्यू लेते हैं, फिर उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसकी वेटेड एवरेज लेके फिर उस सबको जब हम डिस्काउंट करते हैं, तो अल्टीमेटली हम जितने मर्जी टाइम पीरियड्स हों हम अल्टीमेटली वी अराइव ऑन द करंट और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। सो इस एग्जांपल में हम ऐसे ही करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कि जो करंट मार्केट प्राइस है HP लिमिटेड की वो 4,800 रुपीज़ है, और हमने कहा था कि 40% प्रोबेबिलिटी है कि उसकी प्राइस
₹60 से इंक्रीज करेगी और 60% प्रोबेबिलिटी है कि उसकी प्राइस ₹20 से डिक्रीज करेगी। या आप सेकंड जो नोट्स हैं उनमें देख सकते हैं कि 40% प्रोबेबिलिटी है अगर प्राइस 60 से इंक्रीज करेगी तो हमारे पास जो न्यू प्राइस आएगी वो 4860 है। ये आफ्टर 3 मंथ्स है, ठीक है। उसने हमें कहा था हर क्वार्टर के बाद, आफ्टर ईच क्वार्टर। सिमिलरली 40% तो चांसेस थे इंक्रीज करने के प्राइस के और 60% चांसेस थे कि प्राइस डिक्रीज कर जाएगी। अब प्राइस जो डिक्रीज करेगी तो वो हमने क्या कहा था बाय ₹20 करेगी। अब अगर प्राइस डिक्रीज करी ₹20 से तो हमारे पास 4800 में से ₹20 माइनस किए तो हमारे पास ₹4780 आ गए। अब ये हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं ये हमारे पास मार्केट वैल्यू है उस शेयर की जिसकी हम ऑप्शन वैल्यू को डिटरमिन कर रहे हैं, उसकी ये शेयर वैल्यू प्रोबेबल शेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 मंथ। अब हम जो ऑप्शन परचेज करना चाह रहे हैं, the maturity of that option is actually 6 months, so we need to travel further 3 more months कि within the next 3 months उसकी प्राइस में क्या चेंजेस आएंगे और क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, तो वो सारी हम कंसिडर करेंगे। तो आप अपर लीफ को कंसिडर करते हैं कि अगर प्राइस 3 मंथ्स बाद 4863, अब अगेन 40% प्रोबेबिलिटी है कि उसकी प्राइस इंक्रीज करेगी बाय 60। अब हमने 60 इसमें ऐड किया तो हमारे पास ₹4920 आ गए। ये हमारे पास मार्केट प्राइस है शेयर की आफ्टर 6 मंथ्स। सिमिलरली अगर प्राइस 60% चांसेस हैं कि प्राइस उसकी डिक्रीज करेगी बाय ₹20। अगर प्राइस इसकी ₹20 से डिक्रीज करी तो इसकी जो नई जो मार्केट प्राइस आएगी आफ्टर 6 मंथ्स दैट वुड बी 4840। ओके, अब सेकंड केस को हम कंसीडर करते हैं कि हमने कहा था अगर प्राइस जो है वो 4780 होगी तो उस केस में भी 40% चांसेस हैं कि प्राइस 60 से इंक्रीज करेगी। अगर प्राइस ₹60 से इंक्रीज करी तो हमारे पास जो न्यू प्राइस आएगी वो ₹4840 होगी। और अगर ये जो प्राइस है हमारे पास आफ्टर 3 मंथ्स अगर ये 60% से डिक्रीज कर 60% चांसेस हैं कि ₹20 डिक्रीज करेगी। अगर ये डिक्रीज करेगी तो इसकी जो न्यू प्राइस है वो ₹4760 आ जाएगी। अब हमारे पास ये जो 4 नोड्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास प्रोबेबल मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ 6th मंथ ऑफ द स्टॉक दैट वी आर एक्चुअली intending to buy the option for. So basically next step में हम क्या करेंगे, हमारे पास इनकी मार्केट प्राइसेस आ गई हैं। अब हम हर एक नोट पे इंडिविजुअली उसकी जो है ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और सिमिलरली हम जिस तरह हम करते आ रहे हैं पहले से, हम उसकी वैल्यू को उसकी जो ऑप्शन की जो वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ और फिर जो है उनकी प्रेजेंट वैल्यू लेके हम अल्टीमेटली we will arrive at the current market price for the current option price for the respective stock. So बेसिकली वैल्यू हम कैसे फाइंड करते थे कॉल ऑप्शन की कि हम कहते थे कि जितनी मार्केट प्राइस हाई होगी एक्सरसाइज प्राइस से उतनी हमारी जो है वो हमारे जो डिफरेंस होता है एक्सरसाइज प्राइस का मार्केट प्राइस का और एक्सरसाइज प्राइस का वो हमारे पास जो होता है बेसिकली वैल्यू होती है हमारी कॉल ऑप्शन की। तो इस केस में हमने एज यू वुड रिमेंबर कि हमने कहा था कि जो एक्सरसाइज प्राइस है वो 4830 है। अब फर्स्ट नोड की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट नोड सेज द मार्केट प्राइस जो वो कह रहा है कि प्रोबेबल मार्केट प्राइस है वो 4920। इस केस में जब हम 4920 में से 4830 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ₹90 आ जाएगा। अब ये ₹90 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कॉल ऑप्शन की वैल्यू को एट द एंड ऑफ द फर्स्ट नोड। सिमिलरली हमने बाकी जो रेस्पेक्टिव नोड्स हैं उन पे कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो 4840 में से हम 4830 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो we'll get a value of ₹10 and similarly in the third node the call option value will remain same। और जो लास्ट नोड है जिसमें कॉल ऑप्शन की वैल्यू 4700 सॉरी जिसमें जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो 4760 है। अब वो क्योंकि हमारी एक्सरसाइज प्राइस से बिलो है तो उस केस में जो है वो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा और जो हमारे पास वैल्यू आएगी कॉल ऑप्शन की वो इस केस में 0 आएगी। अब हमारे पास जो कॉल ऑप्शन है उनकी वैल्यूज आ गई हर नोड पे। अब सिंपल हमने जो है जो कॉल ऑप्शन की वैल्यूज हैं अब हमने उनको उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके एंड उनकी जो है वैल्यूज निकाल के उनको डिस्काउंट कर देते हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। सो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, जो थर्ड जो हमारे पास जो फर्स्ट दो जो हमारे पास ब्रांचेस आ रही हैं क्योंकि वो एक ही ब्रांच में से फर्दर दो वो निकली हुई हैं तो हम पहले उनके साथ डील करेंगे। हम कहेंगे कि
हमारी कॉल ऑप्शन की वैल्यू 90 है। हमने क्या कहा था कि कॉल ऑप्शन की जो हमारे पास वैल्यू होती है उसको हम उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉल ऑप्शन की जो हमारे पास वैल्यू है वो 90 है। कितनी परसेंट चांसेस है कि कॉल ऑप्शन की वैल्यू 90 होगी? तो हमने कहा था 40% चांसेस है। हमने 90 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब उसमें हम ऐड क्या करेंगे? तो इस जो सेकंड लीफ है जिसमें कॉल ऑप्शन की प्राइस 4860 है, अब इसका सेकंड जो हमने ये ब्रांच है हमने इसको भी कंसीडर करना है क्योंकि ये दोनों इसी के पार्ट हैं। तो इसमें हमारे पास कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू आ रही है वो 10 आ रही है और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कॉल ऑप्शन की वैल्यू 10 होगी? वो 60% प्रोबेबिलिटी है। तब हमने इन दोनों को जो कॉल ऑप्शन की वैल्यूज इनको इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया और इनको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 42 आ जाएगा। ये 42 बेसिकली हमारे पास कॉल ऑप्शन की वैल्यू आ रही है आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 मंथ्स के बाद कॉल ऑप्शन की वैल्यू है। अब इसको हमने जब इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू लेंगे क्योंकि एक कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम लेंगे तो ये आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ रहा है फॉर 1 क्वार्टर। तो हम जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू ली तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू जब 42 को जब हम डिवाइड करेंगे 1.03045 से तो हमारे पास जो कॉल ऑप्शन की प्राइस आ जाएगी वो 40.76। अब ये जो कॉल ऑप्शन की प्राइस है ये हमारे पास आफ्टर 3 मंथ्स आ गई क्योंकि हमने जो आफ्टर 6 मंथ्स थी वो निकाल के उसको डिस्काउंट कर दिया तो हमारे पास 3 मंथ्स की कॉल ऑप्शन की प्राइस आ गई, दैट इज 40.76। अब हम नीचे वाले केस में आ जाते हैं कि जब प्राइस जो है वो 4780 होगी तो उस केस में हमने क्या कहा था कि आगे फर्दर दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू 10 हो जाएगी या तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर अब जब कॉल ऑप्शन की वैल्यू 10 होगी तो उसकी कितने चांसेस है कि वैल्यू 10 होगी? तो उसके हमने कहा था 40% चांसेस है कि कॉल ऑप्शन की वैल्यू 10 होगी। सिमिलरली कॉल ऑप्शन की वैल्यू दूसरे केस में जो है वो 0 हो रही है लेकिन हमें नहीं पता कि कितने परसेंट चांसेस, सॉरी कॉल ऑप्शन की वैल्यू क्योंकि 0 हो रही है तो अब जितनी बड़ी प्रोबेबिलिटी हो उसके 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है इट इक्वेट्स टू 0। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया? 10 का 40% 4 होता है तो 4 की जब हमने प्रेजेंट वैल्यू ली तो हमारे पास 3.88 रुपीज़ आ गए। अब ये 3.88 रुपीज़ जो है ये हमारे पास कॉल ऑप्शन की वैल्यू है एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स। ओके, अब हमारे पास बेसिकली दो कॉल ऑप्शन की वैल्यूज आ गई 3 मंथ्स के बाद क्योंकि हमने यही कहा था कि दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि 3 मंथ्स बाद या तो प्राइस हाई हो जाएगी या तो लो हो जाएगी। तो हमने दोनों के लिए दोनों प्रोबेबिलिटीज के लिए उनकी रिस्पेक्टिव कॉल ऑप्शंस की वैल्यूज निकाल ली। अगर तो प्राइस हाई होती है 4800 से 3 मंथ्स के बाद और 4860 पे चली जाती है फिर उसकी जो ऑप्शन की वैल्यू होगी वो कितनी बननी चाहिए? 40.76 रुपीज़। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर उसकी कॉल ऑप्शन की जो वो सॉरी अगर जो प्राइस है वो डिक्रीज कर जाती है बाय 20 रुपीज़ और 4780 पे चली जाती है तो उस केस में जो कॉल ऑप्शन की वैल्यू है वो कितनी होगी? तो वो भी हमने निकाली 3.88। अब बेसिकली हम 3 मंथ्स पे खड़े हैं, जब हमारे पास 3 मंथ्स की कॉल ऑप्शन की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है? हमने करंट प्राइस निकालनी है कॉल ऑप्शन की। अब बेसिकली हम क्या करेंगे? ये जो दो मार्केट पर जो हमारे पास आई हुई है कॉल ऑप्शन की वैल्यूज जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं इन कॉल ऑप्शन की वैल्यूज को इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को फिर ऐड करेंगे और फिर इनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे जो कि हमें करंट प्राइस ऑफ द करंट ऑप्शन प्राइस बता देगा। तो सिंपल हमने क्या किया कि हमारे पास जो फर्स्ट केस था कि उसमें 40% चांसेस थे कि हमारे पास जो कॉल ऑप्शन की वैल्यू 40.76 हो जाएगी तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसमें हमने ऐड कर दिया है कि हमारे पास 60% चांसेस थे कि जो ऑप्शन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3.88 हो जाएगी। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो जब इसकी वेटेड एवरेज ली तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास 18.632 था। तो जब हमने इसकी क्योंकि ये हमारे पास जो है 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ हमारे पास कॉल ऑप्शन की वैल्यू आ गई। अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो हमारे पास 18.08 आ जाएगी। 18.08 रुपीज़ this is actually the current option price or this is the fair price of an option. This is the price at which this option should be priced. और अगर अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे अपनी जो हमें क्वेश्चन में दिया मार्केट में जो अवेलेबल प्राइस है ऑप्शन की, अगर तो प्राइस जो है इससे ज़्यादा है मार्केट में तो हम क्या करेंगे? उसे सेल कर देंगे। अगर तो है ऑप्शन की जो प्राइस है जो प्रीमियम की प्राइस है वो मार्केट में 18.08 से कम है तो हम उससे परचेज कर लेंगे। सो एक और एग्जांपल है सिमिलरली आपका कॉन्सेप्ट मजीद एक्चुअली इन ऑर्डर टू enhance your understanding even better. There's another example which says that consider a 2-year American call option with a strike price of 50 on a stock. The current
price of which is also 50. Assume that there are 2 time periods of 1 year, and in each year the stock price can move up or down by equal percentages of 20%. The risk-free interest rate is 6% using binomial option model. Calculate the probability of price moving up and down. Also draw a two-step binomial tree showing prices and payoffs at each node. Okay, now basically ये question क्या कह रहा है? This question actually states कि जो हमारे पास करंट स्टॉक प्राइस है वो 50 है, और जो हमारे पास एक्सरसाइज प्राइस है वो भी हमारे पास 50 है। और बेसिकली उसने हमें वो बता दिया है कि जो स्टॉक की प्राइस है वो इंक्रीज या डिक्रीज कितने परसेंट से करेगी। वो हमें गिवन है कि स्टॉक की प्राइस चाहे इंक्रीज करे या चाहे डिक्रीज करे, वो सिमिलर परसेंटेज यानी कि 20% से ही करेगी। लेकिन हमें ये उसने नहीं बताया कि कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक की जो प्राइस है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। एक और जो another very useful piece of information given to us in the question, it states that assume that there are 2 time periods of 1 year and in each year the stock price, यानी कि जो मेच्योरिटी है वो कॉल ऑप्शन की वो 2 ईयर अमेरिकन कॉल ऑप्शन, लेकिन हमने कितने टाइम पीरियड्स कंसीडर करने हैं इसमें? 2 टाइम पीरियड्स, और एक टाइम पीरियड 1 साल का है। तो हमने क्या करना है कि हर साल जो है उसकी प्राइस या इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। हमारे पास बेसिकली कितने टाइम पीरियड्स आ गए इसमें? 2 टाइम पीरियड्स। अगेन ये मल्टी पीरियड बाइनोमियल ऑप्शन का क्वेश्चन है, और अगेन इसमें हमें प्रोबेबिलिटीज़ नहीं किया। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें से प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करेंगे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्राइस जो है whether the price will increase or the price will decrease. Once we get to know the probabilities of the probable prices, then we will able to find the value of the call options at their respective probabilities, and we will be able to find the current option price by giving them weights and then discounting them by present value factors, and we will arrive at the current value of the options. सो बेसिकली यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन जो दी हुई है इसको हम यूज़ करते हैं। बेसिकली एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था रिस्क न्यूट्रल मॉडल में वो ये था कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं जो रिस्क न्यूट्रल मॉडल की बेसिक एजम्पशन की थी, जो रिस्क फ्री हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इक्वल होता है जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं हमारे पास हायर या लोअर प्राइसेस की, उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उनकी रिस्पेक्टिव वेट्स से या रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से, उनकी जब हम वेटेड एवरेज लेते हैं तो वो हमारे पास इक्वल होता है रिस्क इंटरेस्ट रेट के। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो रिस्क इंटरेस्ट रेट है वो 1.06 है, जो 0.06 है, इनकी 6% है। इसमें जब हम 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास कैपिटल आई बन जाएगा। अब हमने बाइनोमियल मॉडल के अंदर ये हमने इक्वेशन ड्राइव की थी एज यू रिमेंबर, कि हमने कहा था ये कॉल ऑप्शन की वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है? हमने कहा था कि सी यू, यानी कि जो जब हायर वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से। तो हम सी यू को किसके साथ मल्टीप्लाई करते थे? 1 आई माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी। अब ये आई माइनस डी और यू माइनस डी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रही हैं ऑफ राइज इन प्राइस। ये हमें कहाँ से पता चला? ये हमें बाइनोमियल मॉडल की इक्वेशन से पता चला, जिसमें हम सी यू को, सी यू क्या था हमारे पास? कॉल ऑप्शन की प्राइस। कॉल ऑप्शन की प्राइस का जब प्राइस जो है स्टॉक की प्राइस इंक्रीज करती है, तो जब स्टॉक की प्राइस इंक्रीज करती है उसका मतलब है कॉल ऑप्शन की प्राइस जो है वो पॉजिटिव होती है। उस केस में मतलब कि जब जो मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज करती है, तो उस केस में क्या हमारे पास हमें क्या पता चल रहा है इस इक्वेशन से कि हायर प्रोबेबल प्राइस, कि जब प्राइस इंक्रीज करती है तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटी इस इक्वेशन से फाइंड करते हैं, दैट इज आई माइनस डी डिवाइडेड बाय यू माइनस डी। अब यू आई तो हमें सिंपल है कि हमने रिस्क फ्री इंटरेस्ट में 1 ऐड कर दिया तो हमारे पास 1.06 आ गया। अब यू और डी को कैलकुलेट करने का हमने इजी मेथड फाइंड किया था। वो हमने क्या कहा था कि उसकी जो प्रोबेबल प्राइसेस हैं यू हमने फाइंड करना है तो हायर प्रोबेबल जो प्राइस उसको हम डिवाइड कर देंगे बेस प्राइस से, और डी फाइंड करना है तो लोअर प्रोबेबल प्राइस उसको हम डिवाइड कर देंगे उसकी बेस प्राइस से। तो बेस प्राइस हमारे पास 50 थी और हमने कहा था कि प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज जो है दोनों 20% से करेगी। तो अगर इंक्रीज करेगी 20% से तो 50 का 20% 10 होता है, तो हायर प्रोबेबल प्राइस हमारे पास 60 आ जाएगी, इसको हम डिवाइड करेंगे 50 से, तो अगेन ये हमारे पास जो है 1.20 आ जाएगा। ये हमारे पास यू 1.20 आ गया। एंड अगेन जो डी है हमारे पास वो लोअर प्रोबेबल प्राइस हमारे पास 40, उसको जब हम 50 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 0.80 आ जाएगा। तो अब हमारे पास तीनों वेरिएबल्स आ गए जो कि हमने इस इक्वेशन में पुट करने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइस की। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी
राइज इन प्राइस की कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि जो है प्राइसेस की इंक्रीज करेगी। हमने इक्वेशन पुट की वैल्यूज, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइस आ गई वो 0.65 थी। तो हमने एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइस निकालेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल इन प्राइस होगी उसके लिए हम 1 में से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइस को माइनस कर दें तो अल्टीमेटली एज द कॉमन सेंस से इसके जो बाकी रह जाएगी द रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी विल बी ऑफ फॉल इन प्राइस। तो 1 में से 0.65 माइनस किए तो 0.35 रह जाएगा। तो बेसिकली ये कह रहा गया कि 65% प्रोबेबिलिटी है कि जो प्राइस है वो राइज करेगी और 35% प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस फॉल करेगी। अब बेसिकली सिंपल वही दो स्टेप्स हैं हमारे रह गए हैं जो कि हमने पिछली एग्जांपल्स में भी कवर किए हैं। बेसिकली हमने क्या कहा था कि स्ट्राइक प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस है वो 50 है, 65% चांसेस हैं कि प्राइस इंक्रीज करेगी। अगर प्राइस इंक्रीज करेगी तो 20% इंक्रीज करेगी तो 60 हो जाएगी, अगर 20% डिक्रीज करेगी तो 40 हो जाएगी। सिमिलरली ये हमारे पास 1 ईयर के एंड पे आ गई। सिमिलरली जब नेक्स्ट ईयर पे हम जाएंगे तो आफ्टर द एंड ऑफ द 2 ईयर्स तो अगर प्राइस जो 60 से अगर 20% इंक्रीज करेगी तो 72 पे चली जाएगी। सिमिलरली अगर वो डिक्रीज करेगी तो वो 48 पे चली जाएगी। अगेन अब हम लोअर पार्ट पे आ जाते हैं, लोअर ब्रांच पे आ जाते हैं। अगर प्राइस 40 थी तो 40 से अगेन 65% चांसेस हैं कि वो 20% इंक्रीज करेगी। अगर जब हम 20% इसमें ऐड किया 40 में तो वो 8 बनता है, तो 48 हो जाएगी। और जो लास्ट प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि प्राइस जो है वो 20% डिक्रीज करेगी। तो अगर जब हम 40 का 20% लेते हैं तो वो 8 है। अगर जब 28 जब हम माइनस करते हैं 40 में से तो जो लास्ट हमारे पास प्रोबेबल प्राइस आती है वो 32। तो वही हमारे पास 4 नोट्स आ गए हैं। ये हमें क्या बता रहे हैं बेसिकली रिस्पेक्टिव मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक्स एट द एंड ऑफ 2 years। बेसिकली हमारे पास स्टॉक की प्राइसेस आ गए हैं। अब इन प्राइसेस को यूज करते हुए जो है हम कॉल ऑप्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं और अगेन फिर उसकी प्रोबेबिलिटीज लेके और उसकी प्रेजेंट वैल्यू इसको डिस्काउंट करके उसकी करंट ऑप्शन प्राइस निकालेंगे। सो हमने क्या कहा था हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है वो 50 है। तो पहले केस में हमारे पास जो वो जो मार्केट वैल्यू अगर वो 72 हो जाती है तो हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है वो 50। जब हम 72 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास 22 रुपीज़ आ जाएगा। ये 22 रुपीज़ हमारे पास जो कॉल ऑप्शन की वैल्यू है ये फर्स्ट नोट पे है। और जो बाकी जो 3 नोट्स हैं क्योंकि उनमें जो करंट मार्केट जो प्राइस है हमारी प्रोबेबल मार्केट जो प्राइस है वो 50 से बिलो है। तो इन तीनों केसेस में जो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा तो इन तीनों केसेस में ऑप्शन लैप्स हो जाएगा और वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इन तीनों केसेस में ऑप्शन की क्योंकि वैल्यू 0 हो जाएगी तो जो है इनका इम्पैक्ट नहीं होगा ऑप्शन की प्राइस में। तो हम क्या करेंगे कि सिंपल जो हमारे पास हमने कहा था कि ऑप्शन की वैल्यू 22 है, इसके कितने परसेंट चांसेस हैं कि ऑप्शन की वैल्यू 22 होगी, इसके 65% चांसेस हैं। अब इसमें ऐड हम क्या करेंगे क्योंकि 0 है तो इसमें ऐड जो भी करेंगे 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो आंसर आता है 14.3, इसको जब हम डिस्काउंट करते हैं क्योंकि इसमें काउंटिंग कंपाउंडिंग नहीं थी, इसमें सिंपल इंटरेस्ट रेट था, तो जब इसको हम डिस्काउंट करेंगे 1.06 से हमारे पास 13.49 रुपीज़ आ जाएगा। अब ये 13.49 रुपीज़ हमें क्या बता रहा है, ये कॉल ऑप्शन की वैल्यू एट द एंड ऑफ 1 ईयर बता रहा है। क्योंकि जो दूसरा हमारे पास नोट था उसमें तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू क्योंकि है ही 0 तो वो तो पूरी साइड ही 0 हो जाएगी। जो आई एम टॉकिंग अबाउट द लोअर पार्ट, तो वो तो पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा। तो नाउ अगेन अब हमारे पास कॉल ऑप्शन की वैल्यू आ गई है एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अब हम उसको उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके और उसको डिस्काउंट करके जो कॉल ऑप्शन की वैल्यू है वो प्रेजेंट निकालेंगे। तो हमने क्या किया कि हमारे पास कॉल ऑप्शन की वैल्यू 13.49 आफ्टर 1 ईयर। अब कितने परसेंट चांसेस है कि कॉल ऑप्शन की वैल्यू इतनी होनी थी 13.49, हमने कहा था 65% चांसेस हैं। तो हमने 13.49 रुपीज़ को 65% मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस इसमें ऐड क्योंकि दूसरी साइड टोटल 0 है तो वो 0 हो जाएगी। तो 13.49 का जब आप 65% लेते हो तो आपके पास 8.7685 आ जाता है। और ये हमारे पास जो हमारे पास वैल्यू आती है ये 1 साल बाद की जो प्राइस है कॉल ऑप्शन की वो आ जाती है हमारे पास। तो इसको हमने क्योंकि हमें करंट कॉल ऑप्शन की प्राइस है तो इसको हम डिस्काउंट करते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ। तो हमारे पास जो करंट कॉल ऑप्शन की प्राइस आती है वो हमारे पास आ जाती है 8.272। तो बेसिकली ये
जो था कॉन्सेप्ट थे, बेसिक कॉन्सेप्ट थे बाइनोमियल ऑप्शन, बेसिकली ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स के, जो जिसकी बेस जो थी वो रिस्क न्यूट्रल मॉडल था। फिर हमने डिस्कस किए बाइनोमियल ऑप्शन मॉडल्स, फिर हमने डिस्कस किए मल्टीपल बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल. So I hope this video was helpful in building your basic concepts regarding options. Basically, how options are evaluated, what is the purpose of evaluating options, and what are the different techniques which are used to evaluate options, and how can we determine the fair price of options. How do we know whether the option is overpriced, underpriced, and all of that stuff. So I really hope that you find this video really helpful. So thank you so much for my part. Take care. Allah Hafiz.